Good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home also. Children, always I suggest, so today also I give you a suggestion and I will start my topic with the suggestion that be positive in any kind of situation. Whatever the situation will be, you have to see it in a positive manner. Be a rational thinker. And as your UTs are going on, so well prepared your UTs of each and every subjects and give your 100%. Secondly, the topic which I am going to discuss with you is the revision of the chapter, the methods of inquiry in psychology. उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है और इस इस चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा कि देर आर सो मेनी मैथड्स यू हैव स्टडीड अबाउट द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. बेसिकली चिल्ड्रन, वी इंक्वायर अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर. और ये साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्या है? We do an inquiry about the human behavior. And how we do? By using some of the methods, by using some of the tools, by using some of the techniques. So there are so many methods you have studied in this chapter. You studied about observation method, उससे भी आप information collect कर सकते हो. Behavior की study कर सकते हो. Experiment method आप experiment कर लो. सर्वे कर सकते हो, केस स्टडी कर सकते हो. ठीक है, ये सारे चीजें हैं. देयर आर सो मेनी मेथड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द सिचुएशन यू कैन चूज एनी ऑफ द मेथड विच इज सुटेबल फॉर योर पर्टिकुलर रिसर्च. Now the today which I am going to teach you about the next method of inquiry, which is a psychological testing. So yes, children, by the method, by the use of psychological testing, also you can do an inquiry about the human behavior. You can analyze the data. You can collect the data. You have the information by doing the psychological testing. Psychological testing से आप क्या समझ रहे हैं? It is psychological testing means use of some psychological test. कुछ psychological test available होते हैं and by the help of which you can measure some of the psychological characteristics of an individual. किसी भी पर्सन की साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आपको मेजर करना है तो you can administer any of the psychological tests on that particular individual and you will be able to know about them. And there are so many tests are available like intelligence test to measure the intelligence of an individual, aptitude test which measure the potentiality of an individual, interest test which measure the interest area, and personality test which measure your personality, which reveals your true personality. Okay, and basically which talk about the inner personality of a person. Now moving to the next, you have also seen, children, that these tests are widely used in many kind of purposes. They are used for selection purposes. They are used for checking any of the psychological characteristics of an individual, of a child. They are used in hospitals, they are used in schools, clinics, so in vocational guidance, in career guidance. So many areas are there where the tests were used by the researcher, by the psychologist and by the teacher or by the counselor. And on the basis of the results which they get from these tests, they interpret the behavior and they analyze the behavior of a person. So let us study about something, this one also.
तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। Assessment of individual difference has remained one of the important concern of psychology from the very beginning. शुरू से ही लोग क्यों एक दूसरे से अलग हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च का पार्ट रहा है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में लोग इन चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि क्यों हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग है। And yes, children, individual difference exists not only on the ground of physical characteristics but also on the ground of psychological characteristics. You have find out, children, that कुछ बच्चे होते हैं they learn very quickly, but some get the time, some require the time, some follow the oral instructions very properly, some are unable to follow the oral instruction. You require that you will give them the instruction in the written form because they are unable to understand that oral. कुछ लोगों को आप oral instruction दे दो, कुछ बच्चों को दे दो, वो समझ जाता है, कुछ को नहीं समझ में आता। तो everyone have their own learning capacity, own perception, own intelligence level. Nobody is like the same. कोई भी same नहीं है। The psychologists have constructed different type of tests for assessment of various human characteristics such as intelligence, attitude, personality, interest, attitude, value and educational achievement. These tests used for various purposes such as personal selection, placement, training, guidance, diagnosis करना हो या ट्रेनिंग देनी हो या गाइडेंस करना हो, इन टेस्ट का यूज होता है। In multiple contexts including educational institutions, guidance, clinic, industries, defense establishment, और ये सब कुछ एरियाज हैं, कुछ फील्ड है जहाँ पे इनका यूज हो रहा है। अगर आपने कभी कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट किया होगा या लिया होगा तो आप देखोगे उस टेस्ट में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो एक क्वेश्चनर के फॉर्म में होते हैं। एक शीट ऑफ पेजेस होती है और उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग आइटम्स कहते हैं, वी कॉल्ड एज आइटम। और उन सारे आइटम के प्रोबेबल रेस्पॉन्सेस भी होते हैं विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। It is important here that characteristics for which a test has been developed should be defined clearly and all items should be related to that characteristics only. You might also notice that often a test is meant for a particular age group and it may also have a fixed time limit for answering the question. बेसिकली आपने देखा होगा कई सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर उस एज ग्रुप के लिए होते हैं, कुछ टाइम बाउंडेड होते हैं, कुछ स्पीड पे होते हैं। तो स्पीड इज बेसिकली रिलेटेड टू द टाइम बाउंडेड, आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है जो भी टेस्ट स्पीड से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ हमने बहुत सारी बातें जानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कि साइकोलॉजिकल टेस्ट साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता है और डिफरेंट साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता है। हमने अभी जाना कि कौन कौन से कहाँ इसका यूज होता है, ये भी हमने जाना। ये किस तरीके से होते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम आइटम्स कहते हैं और उनके कुछ प्रोबेबल रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है, 3 पॉइंट है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री। और 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है तो समटाइम एग्री, फिर एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, समटाइम डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसा कुछ होता है रिस्पॉन्स। सम क्वेश्चनर रिक्वायर द रिस्पॉन्सेस इन यस और नो ओनली, सम रिक्वायर द रिस्पॉन्सेस इन ट्रू और फॉल्स ओनली। सो दीज काइंड ऑफ वेरिएशन फाउंड इन द रिस्पॉन्सेस। सो यही होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। What are the characteristics of a psychological test? किन पर्पज से यूज होता है ये हमने, यानी क्या क्या चीजें आपको इसमें पढ़नी है। फर्स्ट मीनिंग, ठीक है, ये मीनिंग अभी मैंने जस्ट आपको बताया। देन पर्पज क्या होता
ठीक है, या एरियाज और फील्ड जिसमें ये यूज हो रहे हैं, ठीक है। पैटर्न इसका कैसा होता है, आपको मैंने बताया कि कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसके कुछ रेस्पॉन्सेस होते हैं, ये है। अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या आप फीचर्स कह सकते हो, व्हाटएवर यू कैन राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इट शुड बी स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज, साइकोलॉजिकल टेस्ट को स्टैंडर्डाइज होना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्डाइज, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज। सेकेंड, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ना हो, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो। Psychological test is a standardized and objective instrument which is used to assess an individual's standing in relation to other on some mental or behavior characteristic. Two things were noting in this definition, objectivity and standardization. दोनों होते क्या हैं ये हम समझेंगे। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है सबसे पहले ये समझेंगे। आई थिंक ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। ओके, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? इट रिफर्स टू द फैक्ट दैट इफ टू और मोर रिसर्चर्स administer a psychological test on the same group of people, both of them would come up with more or less the same value for each person in the group. मान लीजिए सपोज मैंने आज एक ग्रुप ऑफ पर्सन पे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर किया, मैंने एक एंजाइटी टेस्ट एडमिनिस्टर किया, ठीक है, एंजाइटी को मेजर करने के लिए। फिर उसी टेस्ट को उसी ग्रुप पे किसी और ने मेजर किया। अगर इन केस द रिजल्ट जो है वो उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन आता है, तो यानी दैट टेस्ट वाज नॉट ऑब्जेक्टिव। वो टेस्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव नहीं है। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? ऑब्जेक्टिव यानी इफ द टू और मोर रिसर्चर्स मेजर द और यूजिंग द anxiety test on the same group of person, and if the results are variated so much, so it means that the test is not objective. test क्या है? objective नहीं है। So to be an objective test for any of the psychological test, it is essential that items should be worded in such a manner that they communicate the same meaning to the different reader. Also, the instruction to the test taker about how to answer the test item should be specified in advance. The procedure of administering the test, such as environmental condition, time limit, mode of administration should be spelled before, and the procedure for scoring of the participant responses need to be described. It's very important that a test is said to be objective only when everything should be in a very proper manner. Like मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर उसी टेस्ट को उसी ग्रुप पे कर रहे हैं बट रिसर्चर चेंज हो रहा है और वो कोई और रिसर्चर कर रहा है, तो रिजल्ट डिफर नहीं होना चाहिए। तो रिजल्ट डिफर होने के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है कि रिसर्चर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। समटाइम द इंस्ट्रक्शंस वर अनक्लियर और अनएम्बिग्यूअस होने की वजह से, सॉरी एम्बिग्यूअस एंड अनक्लियर होने की वजह से क्या होता है? रिजल्ट्स वेरिएट करते हैं। डिफरेंट रिसर्चर्स होते हैं तो उनका वो वे होता है इंस्ट्रक्शन देने का, अदर रिसर्चर्स का अदर वे होता है इंस्ट्रक्शन देने का, तो वो अफेक्ट करता है। अंडरस्टैंड? तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द इंस्ट्रक्शन विच यू आर गिविंग।
सेकेंड इज द इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो भी अफेक्ट कर सकता है। हो सकता है जब फर्स्ट रिसर्चर, इट कैन बी हैपन दैट जो पहला रिसर्चर जब भी ले रहा होगा तो इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत अच्छा रहा होगा, द टेम्परेचर लेवल वॉज गुड, द नॉइज लेवल इज गुड, ठीक है, सारी चीज़ें कंट्रोल में रही होंगी तो ले रहा है। सेकेंड रिसर्चर लिया तो इन्वायरमेंटल कंडीशन पैथेटिक हो गया, एक्सट्रीम विंटर हो रहा है या एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा है, एक्सट्रीम हीट हो रहा है, तो वो भी सब्जेक्ट को अफेक्ट करेगा, तो रिजल्ट्स वेरिएट होंगे। तो ये इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है अगर हमें चाहिए कि हमारा जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव रहे। और कैसे आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं टेस्ट, उसका प्रोसीजर वो भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, टाइम लिमिट, ठीक है, मोड ऑफ किस तरीके से आपने उसको समझाया, ठीक है, प्रोसीजर फॉर स्कोरिंग आपने कैसे किया। हो सकता है डिफरेंट रिसर्चर्स हैं तो सारे रिसर्चर्स अपने वे में स्कोरिंग कर रहे हों, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो these are some of the things which a researcher have to keep it in mind while taking a test. The another important characteristics of any of the test is it should be reliable, it should be standardized, it should be objective, and third is reliability. A test should be reliability. एक अच्छे टेस्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अ गुड टेस्ट इज सेड टू बी रिलायबल। Reliability of the test refers to the consistency of score obtained by an individual on the same test on two different occasions. That is known as reliability. Reliability means scores में consistency होनी चाहिए। एक ही इंडिविजुअल ने अगर किसी और, जैसे आज मैंने टेस्ट लिया और मेरा जो भी स्कोरिंग आया और मैंने आफ्टर 1 वीक वही टेस्ट लिया और मेरा स्कोरिंग जो भी आया, अगर इन दोनों में कोई इनडिफरेंस है या कंसिस्टेंसी नहीं है तो यानी वो टेस्ट क्या है, रिलायबल नहीं है। टेस्ट हम रिलायबल उसे कहेंगे जिसकी स्कोर्स में कंसिस्टेंसी हो, अगर हम उसे डिफरेंट ओकेशन पे भी ले रहे हैं तो भी। For example, you administer the test to a group of students today and re-administer it on the same set of students after some time, let us say after 20 days. If the test is reliable, there should not be any variation in the score obtained by the student on the two occasions. So बच्चों आप समझ लो कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी के कुछ टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ये सब रिलायबिलिटी के ही टाइप्स हैं। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एंड स्प्लिट हाफ reliability. Test reliability indicate the temporal stability. Temporal stability की बात करता है। It is computed by finding out coefficient of correlation between the two set of score on the same set of person, and split half reliability is an indication about the degree of internal consistency of the test. सो चिल्ड्रन रिलायबिलिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, टेस्ट रिटेस्ट और स्प्लिट हाफ। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी जो है टी फॉर टेम्परल स्टेबिलिटी ये मेजर करता है। ये दोनों ही 2 चीजें मेजर करती है, ये टेम्परल स्टेबिलिटी मेजर करता है और ये इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करता है, ठीक है। टेम्पोरल स्टेबिलिटी यानी टाइम पीरियड को मेजर करता है, जैसे कि आज मैंने टेस्ट एडमिनिस्टर किया, बहुत टाइम बाद उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसमें दोनों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, वही सेम स्कोर आना चाहिए। तो ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी यानी आज टेस्ट लिया फिर से टेस्ट लिया। स्प्लिट हाफ क्या है, ये इंटरनल कंसिस्टेंसी देखता है। स्प्लिट हाफ इंटरनल कंसिस्टेंसी मीन्स कि जो आइटम्स हैं वो एक ही डोमेन के हैं ना, ऐसा तो नहीं अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल और ऑरेंजेस,
ये क्या है, एक ही डोमेन का है, दो बोथ आर बिलोंग टू द वन डोमेन विच इज फ्रूट, ठीक है, दोनों ही फ्रूट है। तो ये मेजर करना स्प्लिट हाफ का होता है कि जो टेस्ट है वो एक ही डोमेन, जैसे आज मैंने जो टेस्ट लिया और जो मैं 10 दिन बाद ले रही हूँ या 20 दिन बाद, ऐसा तो नहीं है कि डोमेन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट एंड स्प्लिट हाफ। टेस्ट retest measure the temporal stability and split half measure the internal consistency. Now the next characteristics of a test is validity. A test should be valid. It's very important that it should be valid. A test, एक अच्छे टेस्ट को a good psychological test should be valid. वैलिडिटी कहने का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर टेस्ट वही मेजर कर रहा हो जिसके लिए उसे बनाया गया। अ वैलिड टेस्ट मीन्स अ टेस्ट मेजर व्हाट इट पर्पस टू मेजर। फॉर एग्जाम्पल, if a test was made for measuring the intelligence of an individual, it should measure the intelligence. ऐसा ना हो, it is not like that, it measure the personality or it measure the attitude or attitude or something else. अगर उसको इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए बनाया गया है तो वो इंटेलिजेंस ही मेजर करे, ऐसा ना हो कि वो कुछ और मेजर करे। तो दैट टेस्ट इज नोन टू बी वैलिड। उस टेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वैलिड कहेंगे। इफ यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स अचीवमेंट, वेदर द टेस्ट इज मेजरिंग मैथमेटिकल अचीवमेंट और मेजरिंग एनी काइंड ऑफ अदर थिंग लाइक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, so that test is not said to be valid. Okay, now the next and the last characteristics of a psychological test is norms. हर एक psychological test कुछ norms पे based होता है, कुछ rules और regulation होते हैं, proper instructions उसमें दिए गए होते हैं और उसी accordingly ही आपको response करना होता है। So नॉर्म्स, अ टेस्ट बिकम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और ये तभी स्टैंडर्डाइज भी होते हैं जब उसमें टेस्ट के कुछ नॉर्म्स होते हैं। अ टेस्ट बिकम स्टैंडर्डाइज्ड व्हेन द नॉर्म्स आर डेवलप्ड फॉर द टेस्ट। Norm is the normal or average performance of the group. The test is administered on a large number of students and their average performance standards are set based on their age, gender, place of residence, etc. This helps us in comparing with the performance of an individual. It also helps in interpreting individual score obtained on test. So norms होने की वजह से ही टेस्ट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है। So children, these are some of the characteristics of a psychological test. We studied about what is psychological test, what is psychological testing, what is its purpose, in which area, in which particular field it was used, then what are the characteristics, what is the pattern of the psychological test. Now what are the types of test? अब हमें ये पढ़ना है कि कितने टाइप्स होते हैं टेस्ट के। I hope this is all is clear to you. I am going to rub it. You should make your notes accordingly as it is written over here, and you should also keep it in mind what are the types of reliability, okay, so that you will be able to solve your 1 marks question. Now the type of test भी आपको पढ़ने हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। टाइप्स हमें पढ़ना है। टाइप्स में अगर पढ़ेंगे तो डिफरेंट बेसिस के पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल। 3 कैटेगराइजेशन में डिवाइडेड है टाइप्स। फर्स्ट कैटेगराइजेशन है बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे क्या टाइप है साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे कितने टाइप है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हो, ओके। एंड थर्ड इज द
डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल पे कितने टाइप्स होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के? बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे करेंगे तो देयर आर 3 टाइप ऑफ टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस। लैंग्वेज के बेसिस पे होते हैं वर्बल, सेकेंड इज द नॉन वर्बल एंड थर्ड इज द परफॉर्मेंस। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे है आपका इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, और सेकेंड है ग्रुप टेस्ट। ये एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे है। डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे भी 2 टाइप है, ठीक है। पहला है स्पीड टेस्ट, ठीक है, स्पीड टेस्ट, और दूसरा है पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट, ठीक है। आप देख सकते हो बोर्ड पे, आप अपने कॉपी में भी आप इसी तरह से बनाएंगे कि 3 बेसिस पे टेस्ट के टाइप डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफिकल्टी लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन इजी है, पहले वो समझ लेते हैं। जो टेस्ट होते हैं अगर एडमिनिस्टर करना है तो हम लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ 1 बाय 1 दे सकते हैं, या उस टेस्ट को ग्रुप में भी कंडक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज के बेसिस पे वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस, ये भी साइकोलॉजिकल कुछ टेस्ट वर्बल होते हैं। वर्बल जब आता है तो ओरल और रिटन दोनों की बात हो रही है। वर्बल टेस्ट जो होते हैं वो ओरल और रिटन दोनों होते हैं, ओरल एंड रिटन बोथ, ठीक है। नॉन वर्बल की जब बात होगी तो नॉन वर्बल जो है वो पिक्चर्स पे बेस्ड होते हैं, ये पिक्चर्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस जो होता है वो एक्ट पे बेस्ड होता है, मोटर मूवमेंट रिक्वायर्ड करता है, एक्ट पे बेस्ड होता है। वर्बल यानी कुछ चीजें हम लोग पूछते हैं, या कुछ चीजें जैसे रिटन होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आपको दिए जाते हैं और वो फिल करके रिस्पोंडेंट देता है, तो वो क्या रिटन दे रहा है। कभी कभी टेस्ट जो होते हैं कुछ नॉन वर्बल भी होते हैं, यानी पिक्चर्स दिए जाते हैं और उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा इससे रिलेटेड है। परफॉर्मेंस होता है जिसमें कभी कभी आपको एक्ट करना पड़ता है, जैसे ब्लॉक्स दिए उनको अरेंज करना। एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे इंडिविजुअल ग्रुप मैंने समझा ही दिया। डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे भी टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट, ठीक है। स्पीड टेस्ट रिक्वायर यू टू बी टाइम बाउंडेड, ये टाइम बाउंडेड होते हैं ऐसे टेस्ट। और पावर टेस्ट चेक्स योर स्ट्रेंथ, वो आपकी स्ट्रेंथ चेक करता है। इन अ स्पीड टेस्ट देयर इज अ टाइम लिमिट within which the test taker is required to answer all the item. Such a test evaluates the individual on the basis of the time taken to answer the item accurately. कितने टाइम में आप आंसर्स को कितनी एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर रहे हो। In a speed test, all of the items are of the same degree of difficulty. ये डिफरेंस है स्पीड और पावर में। स्पीड में जो जितने भी आइटम्स होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल सेम होता है, क्योंकि आपको उसमें टाइम चेक करना है कि कितनी जल्दी आप उसको अटेम्प्ट करते हो। बट पावर में आपकी पावर को चेक करना हो रहा है, माइंड पावर की बात हो रही है, फिजिकल नहीं। तो पावर को चेक करने के लिए डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, सेम लेवल का नहीं होता। On the other hand, power test assess the underlying ability of the individual by allowing them sufficient time. इसमें आपको टाइम पूरा मिलता है पर, and these tests do not have any time limit, but the items are generally arranged in an increasing order of difficulty. Difficulty level बढ़ता जाता है, जैसे केबीसी में देखते हो आप कैसे कैसे जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, तो वो होता है पावर टेस्ट। ये टाइम बाउंडेड नहीं होता बट डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होती है। और स्पीड टेस्ट क्या होते हैं, टाइम बाउंडेड होते हैं बट दे हैव द सेम डिफिकल्टी लेवल। सो इट इज वेरी गुड थिंग अबाउट दिस वन।
नाउ वर्बल नॉन वर्बल में जैसे क्या होता है, जो वर्बल टेस्ट है वो यूजली लिटरेट पर्सन कर सकते हैं, बट जो नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस है वो इलिटरेट भी कर सकते हैं. तो लिटरेसी इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग वर्बल टेस्ट as the items have to be written in some language, and in non-verbal test items are made of symbols or picture. Performance tests require movement of object from their respective places in a particular order. वही मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस में जैसे कुछ ब्लॉक्स दिए जाते हैं, आपको उन्हें अरेंज करना हो सकता है या चीज़ों को ऑर्डर में करना हो सकता है. परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, एक्ट बेस्ड होता है. इंडिविजुअल टेस्ट जो होते हैं वो एडमिनिस्टर होते हैं रिसर्चर्स पे एक ही बार में, और ग्रुप टेस्ट जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन पे होते हैं. इंडिविजुअल टेस्ट में एडमिनिस्टर होते हैं फेस टू फेस, बट ग्रुप टेस्ट जो होते हैं इंस्ट्रक्शन अबाउट आंसर द आइटम्स आर रिटन ऑन द टेस्ट, वो उसमें ऑलरेडी रिटन रहता है. इंडिविजुअल टेस्ट जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट ग्रुप टेस्ट ईजी होते हैं एडमिनिस्टर करना और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. So these are some of the description about the types of psychological test. So I hope children the topic is very much understand to you, and still if you find any of the doubt regarding this one, you ask in the classroom. Thank you so much for carefully observing this.